Good morning students and welcome to our e-learning session for class 10th. And today we are on lecture number 3 for chapter number 2, that is Cultural Heritage of India. And in that we will going to talk about traditional handicrafts and fine arts. So student, as I said, one of the most interesting as well as most informative lectures and the chapter what we are going to discuss. So let's start with the revision what we have previously discussed in first two lectures. So as you know, India is having the rich heritage, rich culture. Okay, two type of heritage what we have discussed. That is, one is a genetic inheritance. That what we know, we can say by birth, what we get from our parents, physical and the mental state, what we got, that what we is the genetic. Whereas house, land, estates like properties and the obtained from the ancestor is called the materialistic inheritance, जिसको हम गुजराती में कहते हैं वारसो. The things, characteristics what we got from our ancestors, हमारे पूर्वजों से जो हमें मिलता है, that what we says inheritance. And we should be proud whatever the characteristic we are possessing, the things what we got from our ancestor is a unique. Yes, and if we talk about the Indian heritage culture, it is the one of the best and one of the, we can say no other country is having such a wonderful and the unique culture and heritage. So in this way we can say India is having the wonderful culture and heritage. If we talk about the art of Indian artisans, okay, we know that India, from the ancient time, since ancient time, India was quite developed in science, in field of math, even in the engineering, even in the medicines. This all we have learned. So specially we are talking about the art of Indian artisans. And Indian art is wonderful and unique in every manner. If we compare till date, or if we compare present time, present art with the other part of the world, so even we can understand that the one of the wonderful things, one of the wonderful art we are having. In Gujarati, I told you that is a proverb, एक कहावत है, बार गावे बोली बदलाए. Yes, so even the linguistic diversity what we are having, even in the art, craft, handicraft, different types and form of the dance. So we are having multiple varieties of this thing. First of all, we talk about the art of a clay work. Okay, so मिट्टी. So मिट्टी से नाता इंसान का बचपन से cradle to grave. That what we have discussed. The word what we use, cradle to grave. पालने से लेके मृत्यु पर्यंत तक. And ancient time, when we talk about the Harappan civilization, the oldest civilization, 5,000 years back. So at that time also archaeologists found number of evidence. They found a pot and the toys and number of things. It was a baked clay as well as the terracotta, unbaked cake. Okay, clay. So this type of things what we found. So it proved that our ancestors used, they were very skillful and they used this type of materials, they use the clay in the different way. Then wonderful thing what we discuss about the art of weaving. Silai or bunai ka kaam. Okay. So the art of making long threads using the small piece of cotton from the cotton balls and the joining them together is called the art of spinning. Okay. So well known, even the Gandhiji emphasized on this cottage industries of the weaving. During the freedom movement, that what we talk. Then the hand weaving we talk. In that we talk about the muslin of Dhaka, that is a malmal ka Dhaka, and it was so fine that can be passes in a small ring and it can be fitted in a small matchbox. So it was so fine. Even today this is a world famous. Even the Banarasi silk, Kanjivaram sari, this all are the special art from our country. Then we talk about the Patanna Patola. Okay, so this is the wonderful and unique art from Gujarat, especially from the Patan.
And during the reign of Siddharth Jaisi, when the Solanki era, and Solanki era was considered as the golden period of Gujarat. गुजरात के इतिहास का सुवर्ण काल सिद्धराज जयसी राजमाता मीनल देवी के समय को कहा जाता है, सोलंकी युग को. सो एट दैट टाइम सिद्धराज जयसी ने आर्टिशियंस को बहुत एंकरेज किया था. एंड द पटोला, both the side, either or side you can wear, it is having such a beautiful design that the sari can wear in both the side or either or side. So wonderful saying is over there, padi patole bhat fate pan fite nahi. So it is having so wonderful art, that what we have discussed. Then we talk about the embroidery. In that we talk about the kasab work of Kashmir and different banni work of Kutch, and I show the different pictures, so with that your concept can be clear. Then we talk about the leather work. Leather from early time, early human use, as early human was a hunter gatherer. By killing and hunting they use the meat of animal for the food purpose, for eating purpose. The skin was used for the different purpose. So even today leather is used for a different purpose. So we talk about the masak. Yes, it is a water bottle made up of a skin, leather. So that what we talk. Then the footwear, leather belt and of animal and so on. So leather industries had a prominent place in ancient India, and the well-knit mojadi of Rajasthan, shoe, leather knitted purses, belt and other things made out of the leather. That point we discussed. Then the diamond and the beads work and the animal work, that what we talk. So in India was the only producer of gold and diamond, as we know, and the precious, one of the precious stones, consider like the diamond, Kohinoor, great Mughal, that all we found from our country. Okay, so that point what we have discussed. Then the jari work, a beautiful embroidery with the golden and silver threads. That what we say is the embroidery work and the jari work. Okay, so jari work is seen in India since the ancient time. If you remember that the statue what we found from the Harappan civilization, the bad priest statue, and he was wearing a beautiful shawl like somewhat, and it was having a wonderful embroidery. So that point we talk. Then the metal work, that is the engraving. After stone age, metal age, early human used the metal, copper, bronze and that. So metal work is also very old form of Indian art. So metal age began after developed the stone age, that what we know. Then the wooden art, a beautiful carving still we can see on the temple, mandir and other places. So we can understand over here that India is having the wonderful skill in a different area, like it can be to talk about the artwork, jari work, embroidery, leather work, inlay work in a diamond or the wooden art. Today we will going to talk about the different points. So let's start today's work. So today we will going to talk about the inlay work. Okay. So inlay work is considered to be very ancient art of India. It is a very ancient art of India. So the art of studying the metal, place or stone in a gold or glass or other material is known as a inlay work. Inlay work किसको कहा जाता है? The art of studying metal, places or stone in a gold, glass or other material is known as inlay work. So this point you have to highlight it, or this point you should know. The art of studying the material piece of stone in gold, glass or other material is known as the inlay work. So inlay work is considered to be very ancient art of India. Indian king, emperor, ruler and royal people of that time used to wear ornament as the necklace, bracelet, crown, ring, nose ring, जिसको हम गुजराती में चूक कहते हैं, nose ring, damni, that is a tiko, female used to wear this, and studded with the precious gem like the diamond, pearls, rubies, inlay work in marble.
सो दिस गोल्ड और सिल्वर या तो मेटल के ऊपर प्रेशियस स्टोन्स को जड़ा जाता था, जड़तर का वर्क इसको कहा जाता है, ठीक। सो इनले वर्क इज कंसिडर्ड टू बी वेरी एंशिएंट आर्ट ऑफ इंडिया. Indian kings, emperor, ruler and the royal people of that time used to wear a ornament as a necklace, bracelet, हाथ में जो पहना जाता है, that is a bracelet, crown, ring, nose ring, then the damani, as I said, it's a tico, were the stud with the precious gem, उसमें जड़ा जाता था, जड़तर का वर्क है, and like a diamond, pearl, rubies. So artisans were experts in this work of inlay art. Bikaner area of Rajasthan is more popular for inlay ornament. Even today, Bikaner का जड़तर का वर्क बहुत ही पॉपुलर है, inlay work. So it was having such a wonderful pattern, design and so in a such a beautiful way इसको decorate किया जाता है that it's give a one beauty, super beauty वो देता है. So that what we say is the inlay work. Then let's talk about the akik. Akik means colorful and the precious stones. Okay, so akik is a kind of precious stone especially found in valley area of the river. नदी के किनारे पे, नदी किनारों पर ये सबसे ज्यादा पत्थर, stone, precious stones मिलते हैं. So akik is a kind of precious stone especially found in the valley area of the river, and it is chiefly, what we can say, it is a chiefly we can calcinic mixed with the silica blue or white stone. Now see, ये कहां पे सबसे ज्यादा पाया जाता है? रिवर बैंक पे. ओके, एंड इट इज अ चीफली कैल्सेटिनिक मिक्स विद द सिलिका ब्लू और व्हाइट स्टोन. ये रत्नों को, कैल्सेटिनिक मतलब रत्न, ओके, तो उसको क्या किया जाता है? मिक्स विद द सिलिका ब्लू और व्हाइट स्टोन, इसको मिक्स किया जाता है ब्लू और व्हाइट स्टोन के साथ. एंड कैमेलिन इज मेन स्टोन विद द सेमी ट्रांसपेरेंट क्वालिटी एंड ब्यूटीफुल रेड इन कलर. अब जो कार्नेलियन होता है वो रेड कलर का होता है, ठीक है. सो कार्नेलियन मेन स्टोन विद द सेमी ट्रांसपेरेंट क्वालिटी, जिसको हम स्फटिक कहते हैं. यू नो अबाउट द स्फटिक. स्फटिक सफेद कलर का होता है, वैसे वो हर एक कलर में आता है स्फटिक, एंड इट इज हैविंग द वेरी गुड क्वालिटी. रिलीजियसली पर्पस में भी, रिलीजियसली भी हम हिंदुइज्म में, इवन द इस्लाम, वी यूज दैट स्फटिक. ओके, सो वी वेयर अ माला एंड उसका अदर पर्पस में हम यूज करते हैं. सो कैमेलियन इज द मेन स्टोन विद द सेमी ट्रांसपेरेंट क्वालिटी एंड ब्यूटीफुल रेड इन कलर. And in Gujarat, various precious stones are available in big and small size. गुजरात में अकीक बहुत ज्यादा पाया जाता है. We are having a good industries. And in the small and big size in Ahmedabad, Ranpur and Surat. These all are the few places. Ahmedabad, Surat, Ranpur. वहां पे अकीक की फैक्ट्रीज, अकीक बहुत ज्यादा पाए जाते हैं. So all these stones are sent to the Khambhat. सूरत, अहमदाबाद, राणपुर, वहां पे अकीक मतलब प्रेशियस स्टोन, कलरफुल स्टोन, विच इज फाउंड इन अहमदाबाद, सूरत, इन राणपुर. देन इट वाज सेंट, दिस वाज सेंट टू द खंभात. खंभात में भेजे जाते. सूरत के पास है खंभात, ठीक है. इट इज वेरी फेमस फॉर इज पतंग आर्ट. पतंग बनाने में भी खंभात मास्टरी मानी जाती है. देन लॉक, ताले बनाने के लिए भी खंभात को जाना जाता है. सेम वर्क फॉर द अकीक वर्क, फिनिश गुड बनाने के लिए द स्टोन्स आर सेंट टू द खंभात, एंड ऑल द स्टोन्स आर सेंट टू द खंभात टू मोल्ड इनटू द वेरियस ब्यूटीफुल ऑर्नामेंट. और पत्थर ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए द स्टोन्स आर सेंट टू खंभात, एंड विद द वेरियस बिट्स एंड गार्लैंड ऑफ स्टोन्स आर प्रिपेयर्ड बाय देम. और क्या बनाया जाता है? बिट्स एंड गार्लैंड. मोतियों की माला, पत्थर की माला, गार्लैंड, अलग अलग ऑर्नामेंट्स इससे बनाए जाते हैं. सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ द अकीक वर्क. लेट्स सी सम इमेजेस ऑफ अकीक वर्क. See here you can see, this is the beauty and this is the example of different color of aqiq. See how beautiful it is. Especially girls will like this a lot. This is the example of aqiq and you see the beauty of the stones.
और ये स्टोन्स कहां पे पाए जाएंगे? रिवर बैंक पे, नदी किनारों पे ऐसे पत्थर पाए जाते हैं. इट वॉज कलेक्टेड और उसको फिर फिनिश गुड में लाइक ऑर्नामेंट्स एंड द बीड्स एंड द गार्लैंड में उसको चेंज किया जाता है. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अकीक वर्क. Now let's talk about the painting. Students, here I want to emphasize and I want to say that the painting, one of the beautiful art, one of the finest art of world भी हम कह सकते हैं, one of the beautiful art. See, हर एक कला की कोई कीमत नहीं होती. जैसे कोई कलाकार होता है ना, तो उसकी आप कीमत नहीं लगा सकते. कला की कोई कीमत नहीं हो सकती, ये बेशकीमती होता है. But in that painting, if we talk about the painting and Indian consideration हम ले अगर, so we are having a unique and beautiful art of painting. If we talk about the temple painting, cave painting, या तो हमारे यहाँ पे जैसे राजा रवि वर्मा या कोई भी पेंटर की आप बात करें, Indian artists are world renowned. So painting is, we can say, one of the wonderful art. This is the art by which how you can express your emotion. चित्रकला क्या होती है? जिसमें आप इमिट करते हो, ठीक है, कोई चीज. तो चित्रों के द्वारा, रंगों के द्वारा आप अपने इमोशन को दिखा सकते हो, आप अपने भाव को प्रदर्शित कर सकते हो. जैसे डांस, with your different posture, gesture, you can show your emotion. So उसी तरह से चित्रों के द्वारा, रंगों के द्वारा व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति प्रदर्शित कर सकता है, अपना भाव, अपनी इच्छाएं, अपना मूड या तो अपनी जो सोच है उसको प्रेजेंट कर सकता है. Number of time in your smaller classes, if you remember, your teacher assign you work like, draw the picture and this and that. So by the picture we can create and we can develop our imagination. हम हमारी imagination को develop कर सकते हैं. जो व्यक्ति जितना सोचेगा उतने हिसाब से वो drawing करेगा. So in that manner also art like painting and coloring is a wonderful way to show our emotion and our feelings. कलर के द्वारा व्यक्तियों की, जैसे इट्स अ साइकोलॉजी, जो व्यक्ति को जो कलर अच्छा लगता है उससे उसका माइंडसेट पता चलता है. आप कलर कैसे यूज करते हो, व्हाट द टाइप ऑफ कलर यू लाइक, सो इट शोज योर आपकी एक इमेज बताता है. सो दैट इज हाउ द पेंटिंग का यूज होता है. एंड सिंस एंशिएंट टाइम Indian painting, art of painting, it was a wonderful. So of all the art, painting is the foremost one. सबसे बेहतरीन कलाओं में पेंटिंग. आप लोगों ने पाब्लो पिकासो और बहुत सारे पेंटर्स का नाम सुना है. मोनालिसा आपको पता है, लियोनार्डो विंची दुनिया के बेहतरीन पेंटिंग के अंदर मानते हम. पर उससे भी बेहतरीन काम भारत के अंदर हुआ है और होता रहा है और आज भी हो रहा है. यस, सो पेंटिंग इज एन आर्ट विच कैन बी एक्सप्रेस थ्रू द लाइन एंड कलर. आप अपनी इमोशन, अपनी भावनाएं, अपना हाव भाव, अपनी इमोशन आप लाइन, कलर और चित्रों द्वारा आप प्रदर्शित करते हो. दैट व्हाट वी से इज द पेंटिंग. ये पेंटिंग की खूबसूरती है. आप पेंटिंग देख के कोई एक पूरा सिनारियो आप सोच सकते हो, देख सकते हो, आपके दिमाग में अंदर वो पिक्चर आ जाएगा पूरा. सो द एम ऑफ दिस आर्ट इज टू एक्सप्रेस इमोशन बाय इमिटेटिंग द एनिमेटेड एंड इनिमेटेड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर थ्रू द लाइन्स एंड कलर. भावनाओं, आप अपनी भावनाएं, अपनी अभिव्यक्ति आप रंगों और चित्रों के द्वारा रजू करते हो, आप प्रदर्शित कर सकते हो. ये चित्र काम की, ये पेंटिंग की एक खूबसूरती है. आप आपके मन का जो भी भाव है, वेदर यू आर हैप्पी, इफ यू आर सैड, यू आर वी ऑल नाउअडेज इन व्हाट्सएप वी आर यूजिंग इमोजीज ना. खुश होते तो क्रेजी वाला, लाफिंग वाला, सैड वाला, वी आर यूजिंग दैट इमोजी. व्हाट इट शोज? इट शोज अवर इमोशन. सो बाय द हेल्प ऑफ पेंटिंग वी कैन शो अवर इमोशन.
So we can say we have evidence of Indian art of painting from remain of 5,000-year-old Harappan culture. And from Harappan civilization, since Harappan civilization we got the evidence of wonderful painting. हड़प्पन सिविलाइजेशन के दौरान भी इवन स्टोन एज और मेटल एज में भीमबेटका की केव के अंदर भी हमें गुफा चित्र मिले हुए हैं. इट मीन्स आज से 10,000 साल पहले, 5,000 साल पहले का व्यक्ति भी चित्र बनाता था. और कैसे कलर, 5,000 साल भी आज भी वो कलर वैसे के वैसे हैं. इफ यू विजिट टू अजंता इलोरा की गुफाओं में आप जाओ, 5-5, 10-10 हजार साल पुराने पिक्चर है, पर आज भी द ब्यूटी, द परफेक्शन व्हाट यू कैन सी, मुझे नहीं लगता कि आज के कोई पेंटर ऐसी ब्यूटी और नेचुरल कलर का यूज करके ऐसा कुछ बना सकता है. So we can say various model of painting have been found out of many time by the archaeologist department during excavation work. We have trace of the picture of animals, birds in the cave painting of primitive man of stone age in the Bhimbetka. Primitive. जब अर्ली ह्यूमन प्रिमेटिव्स था, हंटर गैदरर था, मतलब आज से 25-50 हजार साल पहले भी पहले का व्यक्ति, इंसान जो था, जो एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता था, गुफाओं में रहता था, उस वक्त के भी चित्र भीमबेटका की गुफाओं में आज से इतने हजारों साल पहले भी मिले हुए हैं. इट मीन्स दे वर ट्राइंग टू शो देयर इमोशन. ऐसा माना जाता है कि उस वक्त भाषा नहीं थी, लैंग्वेज डेवलप नहीं हुई थी. सो माइट बी वी अजम दैट के लोग भाषा एक्सप्रेस कैसे करते होंगे. सो माइट बी विद द साइन लैंग्वेज एंड विद द एक्सप्रेशन विद द पेंटिंग वो लोग शो करते होंगे. सो पीपल यूज टू ड्रॉ द जियोन एंड जियोमेट्रिकल डिजाइन एंड स्केच. ज्योग्राफी के दूसरे जो ट्राइंगल एंड द रेक्टेंगल एंड द स्क्वायर एंड द सर्कल अलग अलग शेप से वो मिला के अपने डिजाइन्स बनाते थे. Even we can say that the elephant, rhino, deer are notable among them. और उस वक्त भी elephant, rhino, deer, हाथी, rhino and the deer मतलब हिरन के चित्र 5,000, 25,000, 50,000 साल पहले भी चित्रों में हमें मिले हैं. भीमबेटका की अगर हम पेंटिंग की बात करें तो उसमें व्यक्ति एक भाला लेके पीछे जा रहा है और उसके आगे हिरन दौड़ रहे. इट मीन्स हजारों सालों से ये एनिमल है हमारे साथ. इट मीन्स ऑल्सो दैट एन अर्ली ह्यूमन हंटिंग करता था. दैट ऑल्सो वॉट वी कैन अजम. सो एलिफेंट, राइनो, डियर आर नोटेबल अमंग देम. Gentile Aurora incomparable specimen of such a painting. ड्रॉइंग द स्केच ऑफ स्वस्तिक, साथियों, जिसको गुजराती में कहते हैं स्वस्तिक मतलब साथियों, पिक्चर घड़ो. ओके, देन द स्वस्तिक पिक्चर गणेश एट द टाइम ऑफ फेस्टिवल सेलिब्रेशन इज एन ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ इंडिया. पिक्चर के अंदर, पेंटिंग के अंदर मोस्ट ऑफ ये एनिमल्स और साथ में स्वस्तिक, पिक्चर, लॉर्ड गणेश, इसके चित्र बनाने की परंपरा आदिकाल से, पुराने समय से हमारे देश में चली आ रही है और पुराने पिक्चरों में भी ये सब देखने को मिलता है. सो इवन द रंगोली मेकिंग इज ऑल्सो वेरी ओल्ड ट्रेडिशन इन सम ऑफ द रीजन ऑफ द इंडिया. और बहुत सारे रीजन के अंदर रंगोली बनाने का, इवन आज साउथ में रोज है, ट्रेडिशन है. जैसे हमारे गुजरातियों के घर में तुलसी पूजन हम लोग करते हैं. रोज आपकी मम्मी दादी रोज तुलसी पे दिया करते होंगे, पानी चढ़ाते होंगे. दैट इज अवर ट्रेडिशन. सो इन द साउथ इंडिया रोज घर पे वो लोग सफेद कलर से रंगोली करना उनका ट्रेडिशन है. सो दिस इज द ट्रेडिशन. ये हमारी एक परंपरा है जिसको आज भी फॉलो किया जाता है. See, this is the beauty of Ajanta and Ellora. See the picture and see the color combination. यहां पे आप पिक्चर को देखो और कलर कॉम्बिनेशन देखो. आज के समय में भी मुझे या आपको ऐसा ड्राइंग करना है तो आउट ऑफ इमेजिनेशन द ब्यूटीफुल जो कोई आर्टिस्ट है वही समझ सकता है इसकी ब्यूटी, इसके कलर कॉम्बिनेशन. और इट मीन्स सी, यहां से आप अजंता इलोरा का ये पिक्चर है, ठीक है, उसकी गुफाओं में से ये लिया गया पिक्चर है. इट मीन्स आप एक पिक्चर से आप कितनी चीजें समझ सकते हो. अगर आप पहला पिक्चर देखो तो ये जो भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स डांस का है, मुगट पहना हुआ है, मतलब ब्यूटिफिकेशन आप देख सकते हो, जिस तरह से कपड़े पहने,
उसका भाव आप देख सकते हो, द इमोशन यू कैन अंडरस्टैंड ओवर हियर। यस, एक चित्र से आप कितनी सारी चीजें आप समझ सकते हो, देख सकते हो। एक चित्र आपको एक पूरी कहानी आपको समझा सकता है। हमने गौतम बुद्ध की हमें बात पता है, त्रिशला देवी के सपनों की बात हमें और चित्र वो देखा है कि कौन से उनको स्वप्न आए थे। सो दैट इज लाइक ब्यूटी ऑफ द पेंटिंग। एक पेंटिंग आप देख के और सबके दिमाग में जो इमेजिनेशन आएगा, अगर हमें इसके ऊपर से पिक्चर डिस्क्रिप्शन लिखने को बोले कोई, मेरा आंसर अलग होगा, आपका आंसर अलग होगा। Everyone will have its own imagination. We can develop our imagination. अब यहाँ पे सेकंड पिक्चर में देखो, the ornaments, the dress design देखो। इसका मतलब इतना तो हुआ ना, जैसे मॉडर्न जमाने के लोग कहते हैं कि कपड़ा तो अभी अभी इन्वेंट हुआ, ये 10,000 15,000 साल पुराने पिक्चर है। अब ये पहने हुए उनकी स्टाइल देखो कपड़े, इट मीन्स भारतीय संस्कृति के अंदर ये सब पहले से यूज होता है। अंग्रेज या तो कोई भी हमें भले कहे कि ये सब अंग्रेजों ने डेवलप किया, इट इज नॉट ट्रू। हमारे कल्चर के अंदर ये सब चीजें पुराने हजारों नहीं लाखों सालों से चली आ रही है, ये हमारी परंपरा है। एंड सी द ब्यूटी, ऑर्नामेंट्स देखो उनके पास जो भी चीजें, मतलब इट मीन्स दे वर यूज टू यूज दिस थिंग। चित्र ऐसे तो बनते नहीं, किसी चीज को आप इमिट करोगे, कॉपी करोगे, इमेज करोगे। सो दिस इज हाउ वी कैन सी एंड वी कैन definitely we can say this is the beauty of our culture and this is the beauty of our painting art. See, this two picture is from भीमबेटका। ये दोनों पिक्चर भीमबेटका की गुफाओं में मिला हुआ है। ये स्टोन एज के पहले का, स्टोन एज के समय का है, मतलब आज से लाख साल पहले का है। अब इतने लाख साल पहले भी लोगों ने ये गुफाओं के अंदर, मध्य प्रदेश की भीमबेटका की गुफाओं में ये चित्र मिले हुए हैं। अब दोनों चित्रों का आप देखो, यहाँ पे आपको हिरन जैसा एनिमल दिख रहा है, यहाँ पे तीर जैसा कुछ दिख रहा है, यहाँ पे भी जो इनके पास हथियार है, आज का हथियार जिसको हम भाला कहते हैं, ठीक है, स्पीयर कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, लाख साल पहले भी भारत के अंदर जो लोग रहते थे, दे वर द स्किल्ड मास्टर्स। एंड ये चित्र बनाना, इतना चित्र भी मैं और आप ना बना सके, और ये गुफाओं के अंदर बनाए हैं। और ये लाल कलर, यू कैन सी दिस रेड कलर। एनिमल्स देखो, आप एनिमल्स को भी देख के इमेज कर सकते हो कि जैसे किसी एनिमल के ऊपर वो बैठे हुए, तो ये घोड़े जैसा एनिमल दिख रहा है, उनके हाथों में हथियार है, आगे लोग और आगे पीछे साथ में लोग हैं, तो माइट बी देवर द, कोई राजा हो सकता है, कोई लीडर हो सकता है, या तो वो लोग हंटिंग के लिए जा रहे हैं। इमेजिनेशन आप कैसे भी कर सकते हो इसमें, बट इट प्रूव दैट इंडियन पेंटिंग लाखों सालों से डेवलप है। और ऐसा बेशुमार और बेनमून काम आप दुनिया के कोई देश में, आप दूसरे कंट्रीज के भी पेंटिंग और देखना, 1400-1500 की सदी से ही आपको देखने को मिलेगा। बट दिस टाइप ऑफ ब्यूटी you can see in our culture and in our tradition only. So this is both the picture, both the images is from the Bhimbetka cave from the Madhya Pradesh. Now let's talk about the fine art of India. Fine arts, so singing, playing, dancing, performing role of different character is a unique feature of Indian culture. अब डांसिंग, म्यूजिक, प्लेइंग, ड्रामा करना, नाटक करना, तो नाटक, गायन, वादन, ये जो हमारी परंपरा है वो भी बेशकीमती एंड वन ऑफ द यूनिक फीचर ऑफ आवर हेरिटेज एंड आवर कल्चर. So we can say entertainment with the moral education has been imparted since ancient time through the dramas based on the greatest scriptures like the Ramayana and Mahabharata. दुनिया की सबसे लंबी पोयम है महाभारत, महर्षि वेद व्यास ने लिखी हुई है, जिन्होंने चारों वेद लिखे हैं. 18 पुराण, चारों वेद के कर्ता महर्षि वेद व्यास को माना जाता है और उन्होंने ही महाभारत लिखी है. महाभारत इज कंसिडर एज द लॉन्गेस्ट पोयम, एपिक है, जिसके अंदर कौरव और पांडवों की कहानी पूरी दी गई है. सो एंशियंट टाइम से जो नाटक
खेले जाते थे, जो परफॉर्म किए जाते थे, वो कोई ना कोई मोरल स्टोरी के ऊपर, जैसे वी नो पंचतंत्र की कहानी, जातक की कहानी, जो कोई ना कोई मैसेज देती है हमें, जिससे हम कोई ना कोई चीज सीखते हैं, मोरल वैल्यू सीखते हैं. सो इट इज अवर ट्रेडिशन, व्हाट वी कैन से. ऐसा नहीं था कि सिर्फ नाचने के लिए नाच लिया, गाने के लिए गा दिया, बट इट वॉज सच अ सिस्टमेटिक वे इन अ ब्यूटिफुल मैनर. आज भी जो क्लासिकल डांस, क्लासिकल म्यूजिक, हमारी जो आर्ट है, इट इज हैविंग अ वंडरफुल एसेंस. ओके, सो वी कैन से that since the ancient time, through the drama base of the greatest scripts of like the Ramayana and Mahabharata. Okay, now let's talk about the music. First of all, music. So we can say the Indian music is a unique in the world from the past or the point of view of the tune, rhythm and harmony. So it is different from the music of other countries of the world. दुनिया में बहुत सारे देश है, सभी देश का खुद का कल्चर है, हेरिटेज है, पर आप भारतीय म्यूजिक को सुनो, इंडियन म्यूजिक को, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, सो इट इज हैविंग द वंडरफुल एसेंस. उसके तरह के आप दुनिया के भले हिप हॉप सुन लो, पॉप सुनो, या तो कोई भी ओपेरा सुन लो, पर भारतीय म्यूजिक की जो एक कला है, इट इज टोटली साइंटिफिक. आज मैंने सीखने का शुरू किया, 2 दिन में, 5 दिन में, 1 साल में मैं भारतीय म्यूजिक नहीं सीख सकती. इट इज हैविंग अ कोर्स. जैसे आपको डॉक्टर बनना है तो 5 साल 7 साल का कोर्स करना पड़ता है, सीखना पड़ता है. सेम उसी तरह से इंडियन क्लासिकल म्यूजिक और द म्यूजिक को सीखने के लिए देयर इज अ सर्टेन सिस्टम, एक उसका प्रोटोकॉल होता है, दैट हैज टू बी फॉलो. सो इंडियन म्यूजिक इज अ यूनिक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टाइम, रिदम, उसकी रिदम, than the harmony, and so it's different from the music of other country of the world. अलग अलग राग है, सुबह का राग अलग है, दोपहर का राग अलग है. आप रागों के द्वारा समय बता सकते हो. जैसे अगर आप कोई कॉन्सर्ट में बैठे हो, म्यूजिकल कॉन्सर्ट में बैठे हो और कोई राग बजेगा, तो वो कौन सा समय के साथ आप उसको ज्वाइन कर सकते. दिस इज द ब्यूटी व्हाट वी कैन से. So, Samved, one of the 4 Ved, is considered to be associated with the music. Now, students, हमारे हिंदू धर्म के अंदर, इंडियन रिलीजन के अंदर 4 वेद, 18 पुराण. 4 वेद में सबसे पुराना है ऋग्वेद. दुनिया की सबसे पुरानी बुक अगर कोई है तो वो है ऋग्वेद. ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद. अथर्ववेद बहुत पीछे से लिखा गया है. सबसे पुराना वेद अगर कोई माना जाता है, दैट इज अ ऋग्वेद. चारों वेद के कर्ता महर्षि व्यास को माना जाता है, इसीलिए हम गुरु पूर्णिमा उनकी याद में सेलिब्रेट करते हैं, व्यास पूर्णिमा. सो ऋग्वेद के अंदर मंत्र तंत्र, ईश्वर की, देवी देवताओं की पूजा का विधान है, इसीलिए वो मंत्रों का वेद कहा जाता है. देन यजुर्वेद के अंदर धनुर्विद्या, शास्त्र विद्या, दूसरी स्किल है मार्शल आर्ट और वो. फिर है सामवेद. सामवेद मतलब जिसको अच्छे तरह से गाया जा सके, वो म्यूजिक का वेद सामवेद है. सामवेद के अंदर अलग अलग म्यूजिक, अलग अलग राग, और ऋग्वेद के अंदर जो रुचाए हैं उसको किस तरह से गाया जाए, इसका वेद है सामवेद. एंड आप में से अगर किसी ने देखा हो तो जो सामवेद पढ़ते हैं जो ब्राह्मण्स, वो उसको बहुत सुंदर तरीके से गाते हैं, उसको गा के प्रेजेंट किया जाता है सामवेद को. जैसे कोई भी ऋचाएं होती है तो उसको बोला जाता है, रिसाइट किया जाता है, पर सामवेद को गाया जाता है. इसीलिए म्यूजिक के अंदर, गायन के अंदर, म्यूजिक के अंदर सामवेद उसका बेसिक एक वेद है, जहां से वेदों की और म्यूजिक की जहां से उत्पत्ति मानी जाती है. So we can say 4 Ved is considered to be associated with the music. Samved is considered and associated with the music. And music involve both the singing and the playing. Music मतलब गायन और वादन. म्यूजिक के अंदर गायन मतलब अलग प्रकार से कैसे रागों को गाया जाए, और वादन जो बेसिक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, जैसे तंतु वाद्य है, ताल वाद्य है, अलग अलग वाद्य मतलब इंस्ट्रूमेंट को कैसे बजाया जाए. It is showing that. So both the singing and playing,
सा रे गा मा पा धा नी आर द 7 वॉवेल. सा रे ग म प ध नी, ये हमारे 7 वॉवेल्स है. अब आपको वॉवेल्स की इंपॉर्टेंस पता है. स्वर जिसको कहा जाता है स्वर, हिंदी में हम उसको कहते हैं स्वर. जैसे आप हिंदी सीखो, गुजराती बोलो, इंग्लिश सीखो, तो उसके अंदर वॉवेल होता है. जैसे इंग्लिश में AEIOU इज अ वॉवेल, 5 वॉवेल. विदाउट वॉवेल कॉन्सोनेंट कुछ काम नहीं कर सकते. उसी तरह से म्यूजिक के अंदर सा रे ग म प ध नी, ये 7 स्वर है और स्वरों की मदद से ही गीतों की रचना होती है, म्यूजिक आगे बढ़ता है. जिनको क्लासिकल म्यूजिक, क्लासिकल डांस की पता है, दे नो हाउ द सप्त स्वर, जिसको सप्त स्वर कहा जाता है, ये इवॉल्व हुए हैं. सो सारे गामा पादा are the 7 vowel of the music. Indian music can be divided mainly into 2 parts. अब इंडियन म्यूजिक भी 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे. एक तो क्लासिकल म्यूजिक एंड द फोक म्यूजिक. फोक म्यूजिक क्या मतलब, हम जो अपने कम्युनिटी में गाते हैं, लोकल गीत होते हैं, पर्टिकुलर एरिया के गीत होते हैं. जैसे हम शादी ब्याह में कोई गीत गाते हैं, कोई मर जाता है तो मरसिया जिसको कहा जाता है, ये फोक है. पर्टिकुलर एरिया के लोग जो गाते हैं, जो क्लासिकल नहीं है, दैट व्हाट वी पुट इन द कैटेगरी ऑफ द फोक म्यूजिक. सो वी कैन से वी हैव द 5 मेन राग इन द क्लासिकल म्यूजिक. 5 राग है क्लासिकल म्यूजिक में. वो है श्री, दीपक, हिंडोल, मेघ एंड भैरवी. अब इसके साथ अपार्ट फ्रॉम दिस मैं आपको एक, ये देखो सामवेद है. लेट्स पहले एक आप देख लो यहां पे. दिस इज द सामवेद, अ वेद ऑफ अ होली सॉन्ग. और सामवेद देखो यहां पे लिखा है, व्हाट इज द सामवेद. साम का अर्थ है रूपांतरण और संगीत. साम का अर्थ क्या है, रूपांतरण या तो संगीत, सौम्यता और उपासना. संगीत की जो उपासना करता है, जो ग्रंथ जिसके द्वारा आप संगीत की उपासना करते हो. इस वेद में ऋग्वेद की ऋचाओं को संगीतमय रूप है. क्या है, ऋग्वेद की जो ऋचाएं है उसको किस तरह से गाया जाना चाहिए. एक मैं आपको एक एग्जाम्पल बोलूं. जैसे आप ब्राह्मणों के पास सुनते हैं, स्वस्तिना इंद्रो व्रजश्रवाः. सो दिस इज द वे हाउ वी प्रेजेंट दिस. सो सामवेद के अंदर ये सिखाया गया है. ओम सर्वे भवन्तु सुखिना. सो दिस ऑल आर द वे हाउ वी प्रेजेंट, हाउ वी सिंग, वी रिसाइट द रुचास. सो ऋग्वेद की रुचाओं को संगीतमय रूप है सामवेद में. सामवेद गीतात्मक, गीतात्मक मतलब जिसको गाया जाएगा, यानी गीत के रूप में है. इस वेद को संगीत शास्त्र का मूल माना जाता है. सामवेद को 1824 मंत्रों के इस वेद में, हाउ मेनी मंत्रस आर देयर, 1824. 1824 मंत्रों के इस वेद में 75 मंत्रों को छोड़कर शेष सब मंत्र ऋग्वेद से ही लिए गए हैं. 75 मंत्र सामवेद के खुद के नए हैं, बाकी सभी ऋग्वेद के मंत्र ही सामवेद में दिए गए हैं. इसमें सविता, सविता मतलब गायत्री, सूर्य की उपासना, अग्नि और इंद्र देवताओं के बारे में जिक्र भी मिलता है. इसका मतलब है हजारों साल पहले भी हिंदू धर्म के अंदर गायत्री की उपासना, शिव की उपासना, सूर्य की उपासना, इंद्र की उपासना की जाती थी. ये कोई नया हमारा सोच नहीं है, ये हमारा ट्रेडिशन है. इसमें मुख्य रूप से 3 शाखाएं और 75 रुचाएं हैं. Now these all are the music instrument, but before we talk about the music instrument, let's finish this. So we have the 5 main rag, that is the rag Shri, rag Deepak, rag Bhairavi, rag Hindol and rag Megh. आपने बेजू बावरा, ताना रीरी की कहानियां सुनी हैं. राग दीपक आपको पता है, तानसेन. इफ यू रिमेंबर, मैंने क्लास 7th में जब मैं पढ़ा रही थी मुगल एम्पायर, उस वक्त मैंने आपको ये कहानी सुनाई हुई है. तानसेन जो था, वन ऑफ द जेम, 9 जेम में से, अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, उसमें से तानसेन था. तानसेन जो था वो राग दीपक गाता था. दीपक राग जैसे वो गाया जाता था, द पर्सन हु इज ट्रेन्ड इन राग दीपक,
तो दिए अपने आप जलता है, अग्नि जलती है, जिसको राग दीपक कहा जाता है। मेघ मल्हार गाने से बारिश आती है। भैरवी है, राग दीपक है, राग हिंडोल है एंड राग श्री। ये 5 मुख्य राग है हिंदू शास्त्रों के अंदर, जो माना जाता है आदि गुरु भगवान शंकर को। भगवान शंकर को जगत गुरु, आदि गुरु कहा जाता है। एज भगवान शंकर, लॉर्ड शिव कंसिडर एज द गुरु ऑफ ऑल आर्ट। हर एक विद्याओं के गुरु भगवान शंकर को माना जाता है, आदि गुरु शंकर को माना जाता है। और भगवान का एक रूप है पंचमुख शिव, 5 मुख वाले शिव। और उनके 5 मुखों से ये 5 राग श्री, दीपक, हिंडोल, मेघ एंड भैरवी उनके मुखों से निकले हुए हैं। उसी तरह से नाद ब्रह्म, भगवान के हाथ में डमरू होता है। जैसे मुख्य शब्द है ओम, ओम का संधि विग्रह हम क्या करेंगे? ओ रू म। ये 3 शब्द से ओम बना है। अगर आप उसका वर्ण विच्छेद करो, संधि विच्छेद, ओ रू म, ओम। और भगवान के डमरू से नाद ब्रह्म, जिसको कहा जाता है नाद ब्रह्म। और भगवान के डमरू से ही शब्दों की उत्पत्ति, नाद मतलब आवाज की उत्पत्ति मानी जाती है। सो लॉर्ड शिव कंसिडर एज द आदि गुरु एंड इट इज बिलीव दैट all these rags naturally come out from the पंचमुख of Lord शिव। भगवान शंकर के 5 से ये राग निकले हुए हैं। In ancient India, many texts were written on music, out of which is introduction of 3 संगीत मार्कंड, संगीत रत्नाकर एंड संगीत पारिजात। 3 मुख्य बुकों के बारे में आपकी बुक में दिया हुआ है। हियर ये पुराने समय से, जैसे ये है रुद्रवीणा। अगर आपने रामायण देखी है तो वी नो लंकेश, रावण वॉज अ ट्रेन मास्टर्स, म्यूजिक का मास्टर था, सबसे प्रकांड पंडित था। रामायण भगवान राम के समय में रावण जैसा बड़ा कोई पंडित नहीं था जिसने तांडव लिखा है। शिव तांडव यू नो, जटाटवी गवज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब्य लंबितां भुजंग तुंग मालिकां, that is written and composed by Ravan, and Rudraveena वो बजाता था। So this is the Rudraveena, this is the तानपुरा। तानपुरा जब क्लासिकल म्यूजिक होता है तो तानपुरे की संगीत से, जैसे हारमोनियम होता है उसी तरह से तानपुर की संगीत में, तानपुरा की संगीत में बजता है। दिस इज द सितार, ये सितार है। ये सभी तंतु वाद्य है, तंतु मतलब स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, ये स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट के उसमें आते हैं। एंड दिस इज अ सारंगी, जो हजारों सालों से भारतीय म्यूजिक का एक अभिन्न अंग माना जाता है। सो हमने यहाँ पे 3 बुकों के बारे में बात कर रहे हैं संगीत की। सो इंडियन म्यूजिक कैन बी डिवाइडेड मेनली इनटू 2 पार्ट, दैट इज द क्लासिकल म्यूजिक एंड फोक म्यूजिक। क्लासिकल म्यूजिक कंसिस्ट ऑफ 5 मेन राग एज आई सेड, दैट आर श्री, दीपक, हिंडोल, मेघ एंड द भैरवी, दैट इज अ मेघ मल्हार जिससे बारिश आती है। It is believed that all these rags naturally come out of the Panchmukh of Lord Shiv. In ancient India, many texts were written on music, out of which the introduction of 3, जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, 1 is संगीत मार्कंड, 2nd is संगीत रत्नाकर। रत्नाकर मतलब समुद्र, जहां से समुद्र में से मोती निकलते, इसीलिए दरिया का दूसरा नाम है रत्नाकर, जहां से रत्ने निकलते हैं। सो इट्स संगीत रत्नाकर एंड संगीत पारिजात। Now see, out of the various texts written on the music during the ancient time, the most famous one are the संगीत मार्कंड, संगीत रत्नाकर एंड संगीत पारिजात। वैसे संगीत पे बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई है, बहुत सारी बातें की गई है, पर उसमें से 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट, संगीत मार्कंड, संगीत रत्नाकर एंड संगीत पारिजात। सो म्यूजिक स्कॉलर नारद, जिसका नाम था नारद, who had written संगीत मार्कंड in about 900 BC, बिफोर क्राइस्ट की समय की बात कर रहे हैं। ये 21वीं सदी चल रही है, मतलब आज से 3000 साल पहले की बात हम कर रहे हैं। तो a music scholar Narad, who had written संगीत मार्कंड is about 900 BC, is described 19 वीणा, 19 जात की वीणा। उसका मतलब है आज से 3000 साल पहले भी उस समय के लोग 19 जात की वीणाओं का यूज करते होंगे। जैसे ये एक यहाँ पे मैंने दिखाई थी रुद्र वीणा,
इसका मतलब आप सोचो, जैसे आज हम फ्लूट ना हारमोनियम अलग अलग टाइप के, तो आज से 3000 साल पहले भी लिखा हुआ है. इट मीन्स दे यूज दैट. ओके, सो 19 types of veena and 101 rhythm with the useful even today. 101 प्रकार की रिदम का उल्लेख है संगीत मार्कंड के अंदर. तो आपको याद क्या रखना है, संगीत मार्कंड नारद के द्वारा रचित है, जिसमें 19 वीणाओं का उल्लेख किया गया है और 101 प्रकार के रिदम का वहां पे वर्णन किया गया है. देन संगीत रत्नाकर, अब दूसरी पुस्तक है संगीत रत्नाकर. सो द राइटर ऑफ द टेक्स्ट वाज पंडित सारंग देव. ही लिव्ड इन द दौलताबाद, आज जिसको हम दौलताबाद कहते हैं, पुराना नाम था देवगिरी. सो सामवेद शी, ये है संगीत रत्नाकर एंड संगीत पारिजात, ये दोनों उसके बुक के इमेज है. सो संगीत रत्नाकर, so the writer of this text was the Pandit Sarang Dev. He lived in the Daulatabad, that is the Devgiri, पुराना नाम जिसको देवगिरी कहते हैं. And he was familiar with the South and the North Indian music as he was living in the Central India. दौलताबाद सेंट्रल इंडिया में जो रहते थे, तो वो सारंग देव जो थे उत्तर भारत का म्यूजिक, मतलब नॉर्थ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड द साउथ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, दोनों के ही जानकार थे. So as he lived in the Daulatabad, so he was familiar with the South and the North Indian music. Pandit Vishnu Narayan Bhaktanand considers Sangeet Ratnakar as the most authentic book on the music. संगीत रत्नाकर जो है आज के समय में संगीत के ऊपर सबसे ऑथेंटिक, आप जैसे 10th में आप लोग पढ़ रहे हो तो आप नवनीत या तो गाइड या तो टेक्स्ट बुक को ऑथेंटिक मटेरियल कहते हैं ना, कि वो जो बोले वो सही है, उसमें जो दिया गया दैट इज द ऑथेंटिक. सो म्यूजिक के अंदर संगीत रत्नाकर को सबसे ऑथेंटिक एविडेंस या तो बुक को माना जाता है. सो संगीत रत्नाकर इज बिलीव्ड टू बी द यूनिक एंड अंडरस्टैंडिंग ऑल द एस्पेक्ट ऑफ द म्यूजिक. इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द म्यूजिक वेरी डीपली, वेरी नाइसली और इन द साइंटिफिक मैनर, देन यू हैव टू गो विद द संगीत रत्नाकर. नाउ संगीत पारिजात. So Sangeet Parijat is very important book on the music, and Pandit Ahobal. Now see, Pandit Ahobal had written this text in 1665 on the northern Hindustani music. Uttari music के अंदर, see there is a difference between the North Indian music and the South Indian. Karnataki music is different from the North Indian music. उत्तर भारत का म्यूजिक क्लासिकल म्यूजिक और दक्षिण भारत का क्लासिकल म्यूजिक दोनों ही अलग अलग है. ओके, सो संगीत पारिजात इज वेरी इंपॉर्टेंट बुक. इट इज रिटन इन 1665. साल आपको याद रखने, ईयर आपको याद रखना है, 1665. ऑन द नॉर्दर्न हिंदुस्तानी म्यूजिक, ही हैड नोटेड वन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल द राग, सेइंग द राग हैव देयर ओन इंडिविजुअल आइडेंटिटी. सप्त सूरों की मदद से राग बनते हैं और हर एक राग की खुद की एक पहचान होती है. सो वी कैन से ऑन इंडिविजुअल आइडेंटिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक. ही हैड डिस्क्राइब 29 टाइप ऑफ ट्यून्स. 29 टाइप्स ऑफ ट्यून आज से 500 साल पहले भी उन्होंने डिस्क्राइब की हुई है. सी नाउ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अलादीन खिलजी, आप सबने पद्मावत मूवी देखी है. पद्मावत मूवी में अलाउद्दीन के पास वो उसका पोएट बैठता था जिसको हम आमिर खुसरो कहते हैं, जिसका नाम है तोतिया हिंद, जिसको कहा जाता है पैरट ऑफ म्यूजिक जिसको जाता था. अलादीन खिलजी के राज्य में वो एज अ पोएट था, कोर्ट पोएट था. सो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अलादीन खिलजी, talented Amir Khusro was very famous. Okay, so due to his contribution in the field of music and poetry, he was known as a Tutiya Hind. उर्दू, गजल, तबला, ये सब आमिर खुसरो की देन मानी जाती है, आप सबको पता है. वी हैव लर्न. सो आमिर खुसरो वाज अ सूफी म्यूजिशियन, सूफी था, एंड पोएट एंड स्कॉलर. ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अलादीन खिलजी, टैलेंटेड आमिर खुसरो वाज वेरी फेमस, एंड ड्यू टू हिज कॉन्ट्रीब्यूशन in the field of music and poetry, he was known as the Tutiye Hind. तुती मतलब पैरट, तोता, हिंद का तोता कहा जाता था. सो तुतिये हिंद इन इंडियन हिस्ट्री. अब यहाँ पे बोर्ड में अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए, चाहे वो फिलिंग द ब्लैंक्स में है, चाहे वो वन वर्ड में है,
चाहे वो ट्रू फॉल्स में, तो आपको ये याद होना चाहिए। तूतिए हिंद, आमिर खुसरो, इन द रीन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। ओके, ये सब आपको याद रखना है। भक्ति मूवमेंट, हमने मेडिवल पीरियड में भक्ति मूवमेंट देखा था। प्रभु शिल्प, उसकी सब पूरी कहानी, भक्ति मूवमेंट कैसे स्टार्ट हुई, ये सब हमने चैतन्य महाप्रभु की बात सुनी थी। सो भक्ति मूवमेंट स्टार्टेड इन इंडिया इन द 15th and 16th। भक्ति मूवमेंट में हमने नरसिंह मेहता, मीराबाई, ये सभी के बारे में हमने पढ़ा हुआ है। ओके, सो भक्ति मूवमेंट स्टार्टेड इन इंडिया इन 15th and 16th century। सो भक्ति संगीत ऑफ चैतन्य महाप्रभु, बंगाल में जो हुए थे, जो भगवान कृष्ण की भक्ति करते थे, चैतन्य महाप्रभु, कबीर, वीनो, तुलसीदास, जिन्होंने तुलसीकृत रामायण, हनुमान चालीसा जिसकी रचना की है, मीराबाई, वीनो इन गुजरात एंड राजस्थानी म्यूजिक, नरसिंह मेहता फ्रॉम वेरी प्राउडली वी कैन से भावनगर जिला तड़ाजा, जहां पे उनका जन्म हुआ। ओके, नरसिंह मेहता वॉज अ वेरी फेमस डिसाइपल ऑफ स्वामी हरिदास। और जो तानसेन था ना, वो डिसाइपल किसका शिष्य था? गुरु हरिदास के शिष्य थे वो। इवन मीराबाई भी उन्हीं की शिष्या थी। सो भक्ति संगीत ऑफ चैतन्य महाप्रभु, कबीर, तुलसीदास, मीराबाई एंड नरसिंह मेहता वॉज वेरी फेमस। द डिसाइपल ऑफ स्वामी हरिदास, बैजू बावरा एंड तानसेन एंड ड्यूएट गर्ल ताना रीरी। ताना रीरी दोनों बहनें थी, एक का नाम था ताना, दूसरी का नाम था रीरी, और उसके नाना थे नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता की बेटी थी कुंवरबाई, कुंवरबाई की बेटी थी ताना रीरी। और वो किसके समय में हो गए थे? अकबर के समय में, जब तानसेन था। एक स्टोरी के साथ मैं लेक्चर एंड अप करूंगी। आपको एक ब्यूटी मुझे दिखानी है, या तो आई वांट टू ट्राई द ब्यूटी ऑफ इंडियन म्यूजिक। वी नो अबाउट द तानसेन। यहाँ पे एक जस्ट बैजू बावरा, यू नो, हिंदी मूवी भी बनी है बैजू बावरा म्यूजिक के अंदर। और तानसेन जो थे, उनके गुरु थे हरिदास। हरिदास हिंदू थे, वैसे तानसेन भी ब्राह्मण था, ठीक है। देन ही कन्वर्टेड, पर दैट इज द डिफरेंट स्टोरी। बट बैजू बावरा और तानसेन थे जिनके गुरु थे हरिदास, जो ब्लाइंड थे। अब ताना रीरी की बात सुनो। अकबर के समय में तानसेन उसका म्यूजिक वो था, और 9 रत्नों में से एक था। एंड ही वॉज फेमस फॉर राग दीपक। सो एक बार, जैसे गुजराती में कहावत है ना, राजा वाजा ने वांदरा, पता ही ना चले कि वो क्या करेंगे। तो एक बार कहा जाता है कि अकबर ने ऐसी जीत पकड़ ली कि मुझे राग दीपक सुनना है। तानसेन ने बोला कि मैं राग दीपक गाऊंगा, बट उससे क्या होता है, शरीर के अंदर अग्नि प्रकट होती है। अग्नि मतलब एसिडिक भी आप सोच सकते हो। अकबर ने बहुत ज्यादा जिद की। अब तानसेन को कंपलसरी राग दीपक को गाना पड़ा। ऐसा कहा जाता है कि जब उसने राग दीपक गाया तो पूरे दरबार के अंदर सब दिए और सब जल गए, और शरीर में अग्नि, जिसको आप एसिड बोल सकते हैं हम एक प्रैक्टिकल सेंस में, तानसेन के शरीर में भी अग्नि प्रज्वलित हुई। नाउ वो बीमार हो गया, वो अच्छा नहीं हो रहा था। नाउ अकबर भी प्रेशर में आ गया, टेंशन में आ गया, बिकॉज उसने जीत की थी तानसेन को कैसे भी करके वो राग दीपक को गाए। नाउ तानसेन ने बोला कि अगर कोई ऐसी व्यक्ति मिल जाए जो राग मेघमल्हार गा रही है, मतलब अग्नि है, उसको शांत कौन करेगा? पानी। तो पानी कैसे आएगा? मेघमल्हार अगर कोई गाएगा, क्योंकि ये 5 मुख्य राग में से है। सो नाउ एट दैट टाइम पूरे भारत में शोध हुई। पूरे भारत में अकबर के सैनिक घूम रहे थे, खुद तानसेन घूम रहा था कि कोई ऐसी व्यक्ति मिल जाए, स्कॉलर मिल जाए, हु कैन सिंग राग मेघमल्हार। और कहा जाता है कि वो गुजरात में आए, और गुजरात में जब उन्होंने ताना रीरी, जो 2 बहनें थी, वहां पे दोनों बहनें जो नरसिंह मेहता की बेटियां है, ताना रीरी, वडनगर, जहां का नरेंद्र मोदी का जन्म है, वडनगर में ही ताना रीरी की समाधि है। वडनगर में रहती थी दोनों बेटियां। तो दोनों लड़कियां छोटी थी और दोनों पानी भरने के गई थी, और पानी के ड्रॉपलेट के साथ, तानसेन बहुत बीमार थे, बहुत प्यासे थे, तो वो कुएं के पास बैठे थे, और वहां पे पानी के ड्रॉपलेट के साथ ताना रीरी गा रही थी। और ऐसा कहा जाता है कि तानसेन की शरीर की अग्नि
शांत हो गई। फिर तानसेन उनके पास गए, ऐसे एविडेंस भी है। और जब वो मुगल अपने दरबार में वापस गए तो अकबर ने तानारीरी को बुलाया और तानारीरी ने आने से मना कर दिया एंड दे कमिट द सुसाइड। ऐसी पूरी कहानी है। सो दिस इज व्हाट आई कैन से, दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडियन कल्चर एंड द म्यूजिक। ऐसी तो बहुत सारी स्टोरियां है, जितनी आप सुनो, जितनी आप समझो, इतनी ही कम है। तो आज की समरी क्या है? व्हाट पॉइंट वी हैव डिस्कस? Inlay work to make a necklace, bracelets and the crown studded with the precious gem. Akik stones found in the river valley were mounted and into the ornament. The aim of the art of painting is to express the emotion by using the lines and colors. Then the Indian music involves the tune, rhythm and the harmony. There are 5 main rags. याद रखने, दीपक, भैरव, हिंडोल, श्री एंड मेघ, ये 5 राग आपको याद रखने हैं। संगीत मार्कंड, संगीत रत्नाकर एंड संगीत पारिजात आर कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट फेमस टेक्स्ट इन द म्यूजिक एंड लॉर्ड शिव इज सेज टू बी द ओरिजिनेटर ऑफ डांस। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल गोइंग टू टॉक अबाउट द डांस, डिफरेंट टाइप ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस। 8 प्रकार के डांस है जिसको हम शास्त्रीय नृत्य की कैटेगरी में रखते हैं। सो इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले लेट्स राइट टुडेज होमवर्क। आज का होमवर्क आप लिखिए। So today's homework, please write today's homework. First, write a short note on painting and another point, Sangeet Markand. Write a few lines on Sangeet Markand. So this is your homework, student, and in next lecture we will continue with classical music and remaining part of the drama and art. So I wish everything what we have discussed in this lecture is clear. So in next lecture we will continue this chapter. So this is your homework. Please have a look. Write a short note on painting, Indian painting art, and write a few lines on Sangeet Markand. So this is your homework. So I wish best of luck and thank you.